different होती है, लेकिन results are statistically insignificant in all the cases. So we can interpret here that IPOs issued by high prestige and low prestige underwriters, considering this underpricing, the underpricing of both the high prestige and low IPO, low prestige of low prestige of underwriters is indifferent. यानी कि अगर high prestige IPO issue करता है या underwriter low prestige वाला underwriter IPO issue करता है, दोनों की underpricing indifferent नहीं होती. दो they are indifferent, they are not indifferent, they are same basically. Different तब होगा, they are different तब होता है जब basically मेरा answer significant होता है. So underpricing of IPOs issued by high and low prestige underwriter is indifferent. यानी दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, डिफरेंस नहीं है. सो यहाँ मैं इन दोनों को कह रहा हूँ कि दोनों की IPO जो है वो जो भी है स्टैटिस्टिकली दे आर इनडिफरेंट. ये कम है या ज्यादा है, इन दोनों का मतलब नहीं. अगर ये आंसर सिग्निफिकेंट होता 0.00, then we can interpret that the underpricing of IPOs issued by high and low prestige underwriters are indifferent, are different, are not indifferent, are different. यानी कि दोनों की प्राइस अंडर प्राइसिंग जो है, अगर अंडर हाई प्रेस्टीज IPO इशू करता है तो उसकी अंडर प्राइसिंग डिफरेंट होती है, लो करता है तो उसकी डिफरेंट होती है. बट हियर बाय लुकिंग एट दिस that we have insignificant relationship between these two variables because of this Wilcoxon rank-sum test. So we can interpret that the underpricing of IPOs issued by high and low prestige are indifferent. यहाँ indifferent हो गया, लेकिन अगर significant होता तो हम कहते they are different. So they are not indifferent, they are different. So different तब होता है जब significant होता, 0-0 होता, लेकिन नहीं है. तो इसलिए इस केस के अंदर ये statistically जो है insignificant है कि दोनों के relationship जो है IPOs के issued by different prestige of underwriters है different. तो ये different वाला नहीं चेक करा, ये indifferent है. यहाँ तक समझ आती है. Likewise we can test all the variables and then we can find. जी 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 बताएं. Sir, what is the logic behind there is an inverse relationship between pricing and high prestige of underwriter? अच्छा जी, हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर. ये प्रेस्टीज है. प्रेस्टीज का मतलब होता है रेप्यूट ऑफ द बैंक, and we cannot say that one bank is having good repute and one is having bad repute, so it would be difficult to quantify. So simply in order to understand the concept in case of IPOs, for example मेरे sample में 100 IPOs हैं, and we can classify that how many IPOs are issued by one investment bank. मैं कहता हूँ कि एक सैंपल 100 में से 40 IPOs एक बैंक ने इशू किए हैं, 30 एक ने इशू किए हैं, 20 एक ने इशू किए हैं, और फिर इसमें 60 में है एक है, 70 में एक है. बिकॉज जो IPO इशू होता है उसमें एक अंडरराइटर नहीं होता, उसमें मल्टीपल अंडरराइटर्स होते हैं, 5, 7, 10 कुछ भी हो सकते हैं. सो वी आर ट्राइंग टू मेक दैट we are trying to classify whether they are having high prestige and low prestige. तो high prestige में कहता हूँ कि अगर एक इसको हम ये कहते हैं कि जो अमाउंट उसने इशू की डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ रेस्ड अंडर द सैंपल IPOs. तो जो उसने IPO इशू करके जो फंड रेज किए हैं उस अंडरराइटर ने, उसको डिवाइड करता हूँ टोटल फंड्स दैट हैव बीन रेज्ड बाय टोटल IPOs में जितने भी अंडरराइटर हैं जिन्होंने फंड रेज किए, उनकी क्लासिफिकेशन करता हूँ. उसका डिफरेंट फार्मूला है. सो वी कैन क्लासिफाई दैट IPOs, those underwriters have issued number of IPOs in the market, they have high prestige, and those IPOs जिसने 1-2 50 में से या 100 में से 1-2 IPO इशू किए हैं, we can classify that they are having low prestige. High prestige का मतलब ये हुआ they are having good understanding. एक काम अगर बार बार आप करेंगे ना, then you will be able to expert in particular field. So अगर IPO एक underwriter 100 में से 60 IPOs को underwrite करता है, so underwrite का मतलब ये होता है they are trying to determine the price of an IPO. ये भी एक रोल underwriter का. First they can find out the price of an IPO, or once they have more expertise, they have more knowledge, they have more understanding, so they will be in a position to find out the true price of an IPO. यानी IPO की जो प्राइस है वो क्या होनी चाहिए, that is offer price की बात कर रहा हूँ. And they are trying to set an offer price that can be close to the market price. क्योंकि उनकी expertise इतनी ज्यादा हो गई है, they know कि अगर IPO की प्राइस जो है वो मैं ये रखता हूँ तो मार्केट प्राइस के करीब करीब होगी.
So underwriters are intentionally are showing a higher offer price because they know that this is the price that actually prevail in the market. So offer price ज़्यादा हो जाती है. They are trying to set a higher offer price and they have a trust on them, so they can sell all the shares in the market. जब offer price ज़्यादा होती है and that can be close to the market price, तो under pricing कम हो जाती है. ठीक है जी, अंडर प्राइसिंग कम होती है, तो जी ये रिलेशनशिप होता है. But those IPOs, those underwriters which are not having expertise, they are trying to set a low offer price. They ensure that all the shares need to be disposed, और तभी सब शेयर सेल होंगे जब ऑफर प्राइस कम होगी. कम And once the offer price will be lower, there is more cushion available between the market and offer price. तो जो market price और offer price के दरमियान जो dispersion है वो ज्यादा हो जाएगा. And because of that, the chances of underpricing would be high. So high prestige underwriters may issue shares at a lower price. That's why the probability of underpricing would be high. तो underpricing के chances ज्यादा होते हैं. तो मैं ये डिफरेंट डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है. लेकिन अब हम इसको, मैंने ये भी कहा कि मैं जो भी हम काम करते हैं फाइनेंशियल इकोनॉमेट्रिक्स के अंदर, वी आर ट्राइंग टू टेस्ट, क्योंकि टेस्टिंग के बगैर, सिग्निफिकेंस के बगैर, we are not sure whether there is a relationship exists in market and market में exist करता है कि नहीं करता. ये जो मैंने बात की है कि हाई प्रेस्टीज एंड लो प्रेस्टीज अंडरराइटर की जो अंडर प्राइसिंग की प्रोबेबिलिटी है वो इनडिफरेंट होती है. ये बहुत सारी मार्केट्स में, मॉरिशस में ये स्टडी हुई और बहुत सारी इंडिया में हुई. एंड इन ऑल द केसेस दे आइडेंटिफाई दैट अंडर प्राइसिंग शायद एक नेचुरल फिनोमेना है, अंडरराइटर्स का शायद इतना रोल नहीं होता. सो दैट्स व्हाई द अंडर प्राइसिंग in case of high and low precision writers would be indifferent. यानी दोनों में underpricing, high prestige low prestige doesn't matter here. तो underpricing तो होती है ज्यादा ये काम, लेकिन actually underwriter का शायद आपस में इतना रोल, इतना influence नहीं होता towards underpricing. सर अगर ऑफर प्राइस हायर होगी तो हमारे जो अंडर प्राइसिंग के चांसेस हैं वो कम होंगे. बिल्कुल ऐसे ही. ठीक. देखें ऑफर प्राइस, मैं देखें आपको सिंपल कहता हूँ कि ऑफर प्राइस अगर 10 रुपए है और मार्केट प्राइस अगर 15 रुपीज है, तो 50% आपका रिटर्न बनेगा, 50%. But once the underwriters are trying to determine the true offer price and they have more expertise, they are having high prestige, so the offer price, they are trying to set a higher offer price that can be close to the market price. So they know that the market price can be 15, 14, so they are trying to set a price that can be close to the market price. So the offer price can be 13, offer price can be 14, offer price बहुत ज्यादा करीब हो जाएगी मार्केट प्राइस के. So that's why the probability इन्वेस्टर के लिए, सॉरी सर मैं एक बात करना चाह रही हूँ, जो इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल तो यही है ना कि वो लोअर ऑफर प्राइस पे लें. नहीं, जो मार्केट से इन्वेस्टर के लिए तो ये कि रिटर्न ज्यादा हो. ये सर तो फिर इन्वेस्टर के लिए एग्जैक्टली तो फिर सर वो जो लोअर ऑफर प्राइसेस को प्रेफर करेंगे ना एज कम्पेयर टू द मार्केट प्राइस. देखें जब ऑफर प्राइस कम होती है तो ऑफर प्राइस के पीछे बहुत सारी रीजंस हैं. सो लो ऑफर प्राइस शोज द रिस्कीनेस एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर फर्म. उसकी फर्म की एज कम होगी, उसके एसेट कम होंगे, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शायद इतने अच्छे नहीं होंगे. सो दैट्स व्हाई दीस फैक्टर्स फोर्स दैट दे आर ट्राइंग टू सेट अ लो ऑफर प्राइस. तो ऑफर प्राइस कम हो जाती है. देखिए मैं आपको एग्जांपल कोट करता हूँ. यूनिलीवर का शेयर की प्राइस ज्यादा होती है इसलिए कि उसमें रिस्क नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी यही है कि रिटर्न बनाएगा, उसके एसेट बढ़ेंगे, उसकी प्रोडक्ट मार्केट बढ़ेगी, मार्केट सेगमेंटेशन बढ़ेगी. तो इसलिए वी ट्रस्ट एंड देन वी कैन बाय द शेयर्स एट अ हायर प्राइस. लेकिन एक कंपनी जो है जिसकी मार्केट में प्राइस शायद 15 रुपए है, वी आर इन्वेस्टिंग मनी, वी नो दैट वी आर हैविंग मोर रिस्क because they don't have such expertise, so they cannot survive in the market for a long period of time, but still we are trying to invest money. So we are investing money at a lower price with knowing that the company cannot survive for a long period of time, but we can invest money. For example, एक शेयर 50 रुपए का नहीं बल्कि 2000 रुपए का मैं उसको बाय करना चाहता हूँ. We know that it can give you a low return, but we believe that the price would be less volatile. There's more probability that the company can provide more dividend in future. So that all these factors lead. But the question is that in both the cases, one of the party can take the benefit. Either it can be the company or it can be investor. So it is not the case that so if we are trying to set a low offer price, the investors will take more benefit. If we are trying to set a higher offer price, in this case, the company can take the benefit. So this is not the case, but it all depends upon that which company and which IPO is trying to float their shares in the market.
So next step is that we need to understand that first we need to find out that underpricing by issue size. मैंने कहा था कि ज्यादा शेयर इशू करेंगे तो अंडरप्राइसिंग कम होती है, यानी बड़ा साइज होगा कम इशू का। इशू साइज का मतलब था नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई किया था उसकी प्राइस के साथ, यानी नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख शेयर इशू करने हैं मल्टीप्लाई बाय देयर प्राइस, दैट इज नोन एज साइज ऑफ इशू। साइज ऑफ जो ट्रांजैक्शन है, साइज ऑफ प्रोसीड है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है। सो वी कैन डिस्कस दैट वी एक्चुअली segregating on our sample on the basis of by establishing quantile. So quartile, sorry, we are trying to establish four quartiles here. So we split our sample into 4 quartiles and सबको split कर दिया मैंने 4 को सबको divide कर दिया, और इसको small and large को भी मैंने split कर दिया, यानी 80 IPOs को segregate कर दिया। यानी जो मैंने कट लगाया मीडियन, या मीडियन नहीं मैं कह रहा, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज भी नहीं कह रहा, मैं अपने डाटा को सेपरेट कर रहा हूँ। 40 IPOs कट लगा रहा हूँ, जहां उसका साइज बड़ा था उसको मैंने कह दिया लार्ज साइज है, अगर उसकी वैल्यू कम है तो देन वी कैन कैटेगराइज अ स्मॉल size of issue, small size of issues. So we are trying to, why we are splitting them into 4 quartiles, इसलिए 4 quartiles में इनको split किया गया, so we can find out कि हर quartile में returns क्या होता है और कैसे behave करता है IPOs. So if IPO का size is less than 140 million, जो IPO का size है, if it is less than 140 million, it can provide less return. We can find out the returns are in negative in first and second month, but the returns are positive in third month. Whereas if we look at that, we establish a range between 141 and 245, and we can find out that returns are much higher. So if the size of the issue is higher, the chances of underpricing would be higher. The chances of underpricing would be higher, and then we can find out that prices are adjusting themselves. So the return would be 17% at the end of third month. We further develop another quartile that is 246 to 640 million, showing substantial large in size issues of IPOs. So we can find out the underpricing would be higher. Underpricing, still we can say that this is the most appropriate quartile in which we can find out that the IPOs are getting stable and consistent return over the 3 months. But the last quartile is showing that if IPO size of IPO is more than 640 million, that return would be lower as compared to these 2 quartiles. So return would be low. So my first assumption here is that if the size of the issue is large, the probability of underpricing would be low. So here we can say that if the size of the issue is large, the probability of underpricing would be low. मुझे 1 मिनट देंगे? सॉरी मेरी कॉल आ रही है, 1 सेकंड, सॉरी। अदनान, यार मुझे कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे कि मतलब जो एक्सट्रीम बाउंड एनालिसिस सर, मतलब ये कि पेपर में यूज़ किया हुआ है, तो ये इस पूरे प्रोसेस का नाम है, जो जितने ट्रस्ट हुए सब के इन सारे प्रोसेस के एक्सट्रीम बाउंड एनालिसिस के लिए ये कोई स्पेसिफिक टेस्ट आपको है कोई आइडिया? किसी और को है कोई आइडिया? हेलो, जोर को है आइडिया इसके बारे में, एक्सट्रीम बाउंड एनालिसिस के बारे में? नहीं सर, मैं तो लास्ट क्लास में एब्सेंट थी, तो मैंने बिल्कुल ब्लैंक हूँ। सबाहत में नो सर, तो आपको ये तो इनफैक्ट अभी ये कंफ्यूजन है, मैंने अभी पढ़ा भी नहीं था आर्टिकल, तो सर ने भी स्टार्ट किया। ये जो भी सर ने सेंड किया ये वही पढ़ा रहे हैं ना? जी वही पढ़ा रहे जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था, लेकिन मुझे कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा है कि ये एक्सट्रीम बाउंड एनालिसिस जो है ये कोई एक स्पेसिफिक टेस्ट है या इन सारे प्रोसेस को कहते हैं? ये सर से पूछना चाहिए। सर आते हैं, सर से पूछ लें। हाँ ना, क्योंकि जैसे कि आप ये एक
एक टेस्ट है जैसे मैंने वो डी अप्रोच यूज की थी तो उसमें भी था आप स्ट्रेटा में भी ये यूज करते हैं, अनोवा में यूज करते हैं, डिफरेंट किस्म सॉफ्टवेयर हैं जो यूज होते हैं, टेस्ट होते हैं जो यूज होते हैं इसके लिए। जैसे कि हम मतलब जीएमएम करते हैं तो जीएमएम एक स्पेशल टेस्ट है, तो इसी तरह मैं जी मतलब थोड़ा कंफ्यूजन जी हो रही जी। है कि ये कोई हाँ हाँ, ये जो टेस्ट प्रोसेस है, कॉम्पोनेंट है या कुछ ये ऐसे थ्रू सॉफ्टवेयर जो है ना वो उसमें होगा। नहीं हो तो ठीक है, लेकिन मतलब ये क्या आप ये मालूम करना चाहिए कि स्पेसिफिक टेस्ट है जो यहाँ पे मतलब ये कि अप्लाई करके सर आगे चलो इससे पूछते हैं। हाँ ठीक है। आई एम सॉरी यार, वो मेरा असल में कॉल आ गई था मुझे मस्ती से, सर सॉरी। जी जी जी। एक बात पूछनी है सर, कंफ्यूजन हो रही है कि ये जो आप एक्सट्रीम बाउंड एनालिसिस को यूज कर रहे हैं, तो सर ये एक स्पेसिफिक टेस्ट है या पूरे प्रोसेस का नाम एक्सट्रीम बाउंड एनालिसिस है? एक्सट्रीम बाउंड एनालिसिस एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है जिससे आप अपने वेरिएबल्स को गुजारते हैं तो फिर पता चलता है कि कौन सा वेरिएबल जो है वो फ्रेजाइल है या कौन सा वेरिएबल रोबस्ट है। मैं अभी डिस्कस करता हूँ आपके साथ, ठीक है। तो वो बताएगा कि कितने वेरिएबल्स जो हैं वो रोबस्ट हैं या कौन सा वेरिएबल जो है वो फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल का मतलब होता है इररेलेवेंट है, और वो इसलिए होता है क्योंकि थ्योरी से मैच नहीं हो रहा होता। मैं अगर कहूँ कि रिस्क और रिटर्न का आपस में पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो इफ यू रन थाउजेंड ऑफ रिग्रेशंस, द रिस्क एंड रिटर्न विल रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव ही रहेगा। और जो वेरिएबल साइन चेंज नहीं करता, इसका मतलब है उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है दैट दिस वेरिएबल शुड बी सिग्निफिकेंट वेरिएबल, तो वो सिग्निफिकेंट ही होगा। लेकिन सर फ्रेजाइल फिर ये एक वेरिएबल, टेस्ट सर फिर ये एक टेस्ट हुआ ना, लाइक नॉट अ प्रोसेस। अच्छी टेस्ट है। टेस्ट के अंदर प्रोसेस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसको मुझे डेवलप करना पड़ता है। ये सिस्टम में होगा, मुझे एक मेरे वो हैं वाहिद ने मुझे बताया था कि शायद इसके अंदर सर प्रोविजन है स्टाटा के अंदर, लेकिन मैं आपको मैनुअल बताऊंगा और फिर मैनुअल में उसको बताऊंगा कैसे रन किया जा सकता है। सो प्रोसेस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पहले डिफाइन करना पड़ता है। सिस्टम का मतलब तो ये होता है कि आप उसको दे दें, वो खुद ही कमांड दें, क्योंकि यस। बहुत सारे वेरिएबल मैं बताता हूँ आपको जिसमें कुछ वेरिएबल को मुझे फिक्स करना पड़ता है, कुछ वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट बताने पड़ते हैं और फिर उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना पड़ता है, तो मुझे इंसर्ट करने पड़ते हैं वेरिएबल। तो इसलिए प्रोसेस मैं कह रहा हूँ। सिस्टम तो ये होता है कि आप एक उसको दे दें कमांड और खुद ही करता रहे, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट इट्स अ प्रोसेस एंड देन इट विल बिकम द पार्ट ऑफ द एंटायर सिस्टम। ठीक है, अच्छा ओके सर। चले, मैं बात कर रहा था। अच्छा जी, मेरे पास वेरिएबल है और इसमें मैंने डिस्कस किया कि जब प्रोसीड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जब प्रोसीड बहुत ज़्यादा होती हैं तो शायद रिटर्न कम होता है। मेरी मेरी आर्गुमेंट यही है। लेकिन वंस वी कैन ऐड क्लासिफाई आर सैंपल ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल एंड लार्ज साइज ऑफ इशू, तो स्मॉल ये दोनों को क्लब कर दिया, ऊपर वाले दो क्लब कर दिए, नीचे वाले दो क्लब कर दिए। सो हियर वी कैन से दैट स्मॉल साइज ऑफ इशू इज getting low returns, but large IPOs are getting negative, like large size of IPO issues जो है getting high returns। तो ये large size of issue जो है, जब size बड़ा होता है IPO का, we will be getting more returns, but actually it is a contradicting with the theory कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के केस में, but it all depends upon that the market, कि market कैसी है, market में इसको observe करना चाहते हैं। but my hypothesis is that small size of issue provide high return for the investors because the companies are less concerned that at what price they are trying to issue their shares, so the chances of underpricing would be high. But large size of issues, once the company is trying to issue bulk of shares, so they are more concerned that they would get more returns. And once the company will be getting more returns, the offer price can be close to the market price, and the chances of underpricing would be high. लेकिन पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं होता और लार्ज आईपीओस होते हैं तो हम कहते हैं उसमें रिटर्न्स ज्यादा होता है। सो इट कैन अगेन इट्स just a result that we have, but in order to test this result, classifying based on the large and small size of IPOs, so again we can say जो underpricing है between small size and large size of IPOs, in both the cases the probability of underpricing would be indifferent। यानी स्मॉल साइज हो या छोटा आईपीओ हो या बड़ा साइज ऑफ आईपीओ हो, उनकी अंडरप्राइसिंग जो है यहाँ डजंट मैटर। आईपीओ जो है इंडिफरेंट हो जाती है। अंडरप्राइसिंग हैज नो मीनिंग। ये भी रिजल्ट प्रूव करता है। अगर आंसर 0-0 आता तो मैं कहता कि जो स्मॉल आईपीओ होता है उसकी अंडरप्राइसिंग और लार्ज साइज ऑफ आईपीओ होता है, दोनों की अंडरप्राइसिंग डिफरेंट होती है। दे आर डिफरेंट। सर बट सर ये जी, फिर आपकी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रही है।
जी बिल्कुल, दे आर इनडिफरेंट, वो डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट नहीं है जी। ठीक है, मेरा हाइपोथेसिस यही था कि बोथ आर डिफरेंट। विल्कॉक्सन यही बताता है कि दे आर डिफरेंट बट दे आर इनडिफरेंट बिकॉज अंडर प्राइसिंग स्मॉल हो या लार्ज हो उसमें मैटर नहीं करता। अच्छा तो जी, सर हमने आपने डिस्कस। अपने रिजल्ट को कैसे जस्टिफाई किया, क्या रीजन दिया? जी जी, सर आपने अपने रिजल्ट को कैसे जस्टिफाई, क्या रीजन दिया आपने? इसकी रीजन देना बहुत आसान है, इसलिए कि जब मैं कहता हूँ कि देखें स्मॉल साइज आईपीओस का रिटर्न्स कम होता है, लार्ज साइज आईपीओस का डिफरेंट होता है, और दोनों में हम कह रहे हैं कि पहले पहले ही अपोजिट हो गया किस्म का। स्मॉल का रिटर्न 28 होना चाहिए था, लार्ज का रिटर्न शायद ऑन एवरेज 15 होना चाहिए था। सो हम कहते हैं कि बोथ ऑफ आई जो है रिटर्न, दोनों स्मॉल इशू हो, साइज ऑफ इशू हो, लार्ज साइज हो, बोथ दोनों का जो है साइज ऑफ इशू में दी अंडर प्राइसिंग वुड बी डिफरेंट, दोनों की अंडर प्राइसिंग डिफरेंट होती। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि अंडर प्राइसिंग वुड बी इनडिफरेंट। तो इसका मतलब ये है कि लार्ज साइज इशू हो या स्मॉल साइज ऑफ इशू हो, पाकिस्तानी मार्केट में उनकी अंडर प्राइसिंग जो है वो मोर और लेस सेम ही होती है। इसलिए कि देखें, इसको ये सिर्फ इसलिए जर्नल आर्गुमेंट में बार बार कर रहा हूँ क्योंकि एक आईपीओ स्मॉल साइज में इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कंपनीज, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। किसी सेक्टर में पोटेंशियल ज्यादा होता है, किसी में सेक्टर में पोटेंशियल कम होता है। सो वंस वी आर ट्राइंग टू क्लब टुगेदर, सो वो जो इम्पैक्ट नजर आना चाहिए वो नजर नहीं आता, वो खत्म हो जाता है। सो दैट्स व्हाई ट्रूली स्पीकिंग वी आर अनएबल टू आइडेंटिफाई कि अगर स्मॉल साइज है या लार्ज साइज है, दोनों में अंडर प्राइसिंग ऑफ आईपीओस में क्या डिफरेंट है, वो डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। वो डिफरेंस इसलिए नजर नहीं आ रहा कि कुछ सेक्टर्स में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, कुछ कंपनीज में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन कुछ कंपनीज शायद डोंट हैव द एबिलिटी एंड कैपेसिटी। सो वंस वी कैन क्लब टुगेदर, सो द चांसेस ऑफ अंडर प्राइसिंग जो नजर आना चाहिए दोनों साइज ऑफ आईपीओस के अंदर, so we are unable to predict, we are unable to observe, so that's why we are saying that अंडर प्राइसिंग जो है दोनों की इनडिफरेंट होती है, तो इनडिफरेंट हो जाती है। और जनरली स्पीकिंग ये रिजल्ट बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। विल्कॉक्सन देखें उस चीज को आइडेंटिफाई करता है जो बहुत प्रोमिनेंट होता है। विल्कॉक्सन बहुत अच्छा टेस्ट है, और ये मैन विटनी टेस्ट और विल्कॉक्सन टेस्ट, ये सारे टेस्ट ऐसे हैं जो मीडियन के ऊपर लगते हैं। वो सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि दोनों में अंडर प्राइसिंग सब्सटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ डिफरेंस भी नजर नहीं आ रहा। और यहाँ इसके ऊपर स्टेरिक मुझे लगाने चाहिए जहां मैं इसकी सिर्फ टी टेस्ट देख सकूं, सिग्निफिकेंट भी है या नहीं है। ये असल में सिग्निफिकेंस फेड होती जा रही है, ये इसलिए है। ये सिग्निफिकेंस जो है शायद फर्स्ट टाइम में तो शायद हम कह सकते हैं कि शायद दे कैन बी इनडिफरेंट, दे कैन बी डिफरेंट, बट हियर वी आर ट्राइंग टू इंटरप्रेट दैट ऑन द फर्स्ट डे से लेकर 3 मंथ्स तक द probability of underpricing in both case of issues would be indifferent। तो दोनों में डिफरेंस नजर नहीं आता। हम कह सकते हैं इश्यूज के, अब मैं इशू के लेके चल रहा हूँ, मैं अंडर प्राइसिंग अकेले की बात नहीं कर रहा। नाउ वी आर ट्राइंग टू कंट्रास्ट द रिजल्ट बिटवीन द साइज ऑफ इशू एंड अंडर प्राइसिंग। तो दोनों में हम कह सकते हैं इसको कि दोनों में कोई वर्क नजर नहीं आ रही, सो दैट कैन बी इनडिफरेंट। तो ये इसका आर्गुमेंट बन सकता है, ठीक है, जिसका आर्गुमेंट इसी तरह ही बिल्डअप होगा, इस यही आर्गुमेंट इसका बनता है। The next point is that we know that underpricing का investor sentiment, और investor sentiment बहुत important होता है। investor sentiment का मतलब होता है market return before the issuance of an IPO। जो IPO मार्केट में ऑफर प्राइस इसकी हो रही है, या मैं इसको कहूं कि यस ऑफर प्राइस की बात करता हूँ, ऑफर प्राइस से लेके अच्छा नहीं, ये दिया हुआ है कि ट्रेडिंग से दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल जब भी मार्केट ओपन होगी, फॉर एग्जांपल इश्यू तो हो गया, ऑफर प्राइस तो हो गई, ऑफर प्राइस के बाद वो 6 महीने 8 महीने जब भी होगा, जिस दिन वो मार्केट में इश्यू होता है उससे जो पीछे मेरे पास 3 मंथ्स होते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द इन्वेस्टर सेंटीमेंट। यानी मार्केट रिटर्न ज्यादा, मार्केट इन्वेस्टर सेंटीमेंट की जो प्रॉक्सी है वो मार्केट रिटर्न है। इफ मार्केट रिटर्न इज हायर, द प्रोबेबिलिटी इन्वेस्टर सेंटीमेंट्स वुड बी हायर। सो मार्केट रिटर्न उसी वक्त ज्यादा होता है जब मार्केट में ट्रेडिंग ज्यादा होती है। मार्केट सेंटीमेंट कम होता है जब मार्केट में इन्वेस्टर सेंटीमेंट कम उस वक्त होता है जब मार्केट में ट्रेडिंग कम हो रही होती है। सो वी टॉक अबाउट दैट वंस द इन्वेस्टर सेंटीमेंट वुड बी हाई, देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बी गेटिंग मोर रिटर्न्स। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो इन्वेस्टर सेंटीमेंट जो आईपीओ जब मार्केट में लिस्ट होता है, फर्स्ट ट्रेडिंग होती है, उससे पीछे 3 मंथ्स अगर मार्केट एक्टिविटीज ज्यादा है, मार्केट रिटर्न ज्यादा है, तो अंडर प्राइसिंग पे क्या इंपैक्ट आता है, तो अंडर प्राइसिंग क्या होगी, ठीक है। इसलिए कि मार्केट रिटर्न को इसीलिए बाद में एडजस्ट किया, सो वी कैन फाइंड आउट कि इनका दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप बनता है। सो अगेन वी आर ट्राइंग टू सबलेट आवर सैंपल, जो भी मेरे पास 80 आईपीओस है इस स्टडी के अंदर, 80 आईपीओस का मैंने क्या किया, सबसे पहले मार्केट रिटर्न निकाला है फ्रॉम इशू, कह रहा हूँ इशू डेट यानी लिस्टिंग डेट से लेके पीछे 3 मंथ में जो भी मेरे पास 3 मंथ्स बनते हैं उनका
रिटर्न्स कैलकुलेट किए, एंड वी नो दैट इन ऑल द 80 IPOs वी विल बी गेटिंग वन फिगर, हर एक फिगर आ रही है, और उस फिगर को मैंने सब इसको क्लासिफाई किया. अगेन वी आर ट्राइंग टू डेवलप सम पैरामीटर्स, सो वी आर ट्राइंग टू क्लासिफाई इन्वेस्टर सेंटिमेंट इन 3 शेप्स. 3 किस्म में मैंने डिवाइड कर लिए कि अगर रिटर्न नेगेटिव होगा और इन्वेस्टर सेंटीमेंट बहुत कम है, नेगेटिव है, तो 0 तक हो सकता है, 0 से 10% है, 10% से 45% तक हम कह सकते हैं. अगर मार्केट रिटर्न है, देन व्हाट वुड बी देयर इम्पैक्ट ऑन अंडर प्राइसिंग. अगर रिटर्न नेगेटिव होता है तो इसका मतलब है अंडर प्राइसिंग भी कम होगी, क्योंकि मार्केट रिटर्न है ही नहीं, मार्केट रिटर्न नहीं है. If market return is 0 to 10%, then again we can find that underpricing is lower. Just 10% we can find. But here we can say that if underpricing is ranging between 10 and 45%, जितना market return ज़्यादा होगा, the probability of underpricing would be higher. तो underpricing की probability ज़्यादा होती है, या underpricing की probability ज़्यादा हो रही. So we can look at here that in case of we have 30 IPOs, 35 and 35 IPOs, जिसके अंदर ये परसेंटेज, सॉरी नंबर ऑफ IPOs चाहिए 24, 28, 28. सो वी कैन फाइंड आउट कि यहाँ रिटर्न्स की जो डेविएशन जो नजर आ रही है वो सबसे ज्यादा 51, और जितना ज्यादा डेविएशन होती है उतनी चांसेस ऑफ अंडर प्राइसिंग भी ज्यादा होती है, क्योंकि रिटर्न रिस्क ज्यादा हो रहा होता है. सो दैट्स व्हाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग रिटर्न वुड बी हाई. सो मैं सिर्फ यहाँ ये कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, इफ इन्वेस्टर सेंटीमेंट वुड बी हाई, so there is a probability that investors will be getting high returns. Average underpricing की बात करूँ first day, if first day के returns हैं, if IPO का market जो sentiment, IPO से पहले जो market sentiment है या investor sentiment है, if they are higher, the probability is that on the first trading day, on average, you will be getting maximum return, that is roughly 38%. तो यहाँ तक समझ आता है, ठीक है जी. Now we have to move on to दोबारा बोलें. जी जी, देखिए ये हम जितने 80 IPOs की बात कर रहे हैं ना, वो मार्केट में उसका कोई शेयर नहीं है, उसकी कोई मार्केट प्राइस नहीं है. जितने 80 IPOs हैं, IPO का मतलब ये होता है कि मार्केट में अभी तक शेयर ट्रेड नहीं हो रहा, और इन सारे 80 IPOs में से किसी सिंगल IPO का भी शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहा. ये जो मैंने लिया है दैट इज अ मार्केट रिटर्न, और मार्केट रिटर्न का मतलब हमने लिया था KSE 100 इंडेक्स ऑन द लिस्टिंग डे माइनस KSE 100 इंडेक्स 90 डेज या 3 मंथ्स पीछे जो है रिटर्न होगा, यानी 62 63 डेज बनते हैं, उससे पीछे इंडेक्स देखें, डिवाइडेड बाय KSE 100 इंडेक्स प्रायर 3 मंथ्स, प्रीवियस 3 मंथ का जो है. तो इसको मैं जब कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है -23%, -25%, आंसर आता है 5%, आंसर आता है 25%. सो इसके दरमियान जो रेंज कर रहा है, तो हमने ब्रैकेट्स क्लासिफाई कर लिए, और ये मार्केट रिटर्न है जो इंडेक्स की बेस पे बना है, ये इंडेक्स की बेस पे बना हुआ है मार्केट रिटर्न. सो वी कैन फाइंड आउट दैट इफ मार्केट रिटर्न वुड बी हायर, मार्केट रिटर्न मार्केट की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ IPO की बात नहीं की जा रही, IPO तो है ही नहीं, और जितने IPOs हैं उनमें शेयर है ही नहीं, शेयर की प्राइस अभी है ही नहीं. सो वी जस्ट ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट दैट इफ सेंटीमेंट मार्केट, ठीक है. अच्छा जी, ना लास्ट पॉइंट जो इसके अंदर बताना है मैंने, दैट इज एक्सट्रीम बाउंड एनालिसिस. और इस एक्सट्रीम बाउंड एनालिसिस में करना ये होता है कि वी हैव टू रन रिग्रेशन, एंड मल्टीपल वेरिएबल्स की रिग्रेशन को रन किया जाता है, एंड देन वी कैन फाइंड आउट दैट दीज रिग्रेशंस आर फिजिबल और नॉट. उसको बनाने के लिए मैं थोड़ा सा वर्किंग करना चाहता हूँ कि क्या हो सकता है इसके अंदर. So in order to understand that, we know that in case of regression, we have multiple variables. We have different independent variables, and we suppose here that all these are independent variables. So here all these are independent variable, and here we have a dependent variable, and we are classifying that these dependent variable this is underpricing is a function of all these other variables. सर रिकॉर्डिंग जी जी जी, प्लीज जो करना है कर लें, मुझे कर लें आप. आते कितना
अच्छा जी, इन केस ऑफ ये जो एक्सट्रीम बाउंड एनालिसिस होगा, इसमें यू हैव टू फिक्स few variables as fixed variable. Fixed का मतलब होता है in case of multiple regressions, these variable will remain constant. And these variables जो हैं ये identify होते हैं from the previous studies that they are very much important in this kind of analysis. For example, मैं कहता हूँ कि underpricing में ये underpricing है. Underpricing is a function of risk, एक बड़ा इंपॉर्टेंट वेरिएबल, और जब भी आप रिस्क को रिटर्न के साथ करेंगे, खासतौर पे आईपीओस में, सो रिस्क एंड रिटर्न बोथ आर सिग्निफिकेंट, एंड जो रिलेशन पॉजिटिव रिलेशन दोनों का होगा। एक और वेरिएबल जो मैं ऐड करता हूँ जो हो सकता है वो है ओवर सब्सक्रिप्शन। सो ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर प्राइसिंग का आपस में पॉजिटिव रिलेशन होता है। जितना ज्यादा शेयर ओवर सब्सक्राइब होगा इसका मतलब ऑफर प्राइस कम होती है। So these two variables in this study we identify that these two variables, और ये जो वेरिएबल आप इसको बनाना चाहते हैं ना, मेरा अपना ख्याल है कि जब एक्सट्रीम बाउंड एनालिसिस लगाने से पहले इफ यू सेपरेटली रन अ रिग्रेशन ऑन आईपीओ के साथ, सॉरी आपको नजर आ रहा है कि नहीं, मैं बोली लिखी जा रहा हूँ यार, सॉरी नो सर, मैं अकेला ही लिखी जा रहा हूँ, सॉरी मैं बड़ी देर का लिख रहा हूँ लेकिन किसी को नजर नहीं आ रहा, सॉरी सॉरी जी, मुझे बताएं सही, मैं लिखी जा रहा हूँ। मैंने कहा कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ डिफरेंट एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। ये जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये फंक्शन होता है बहुत सारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स का, ठीक है। इन केस ऑफ दीज एनालिसिस जो मैं अभी डिस्कस करने लगा हूँ विद रेफरेंस टू द एक्सट्रीम बाउंड एनालिसिस, एक्सट्रीम बाउंड एनालिसिस में हम दो वेरिएबल को फिक्स्ड वेरिएबल कहते हैं। दीज आर, कोई भी फिक्स आप वेरिएबल ले लें जो थ्योरी बताती है दैट दीज आर द इंपॉर्टेंट वेरिएबल। सो हियर वी आर ट्राइंग टू दैट दीज आर द फिक्स्ड वेरिएबल्स, और ये फिक्स्ड वेरिएबल है मेरे पास, दीज आर द फिक्स्ड वेरिएबल्स, फिक्स्ड वेरिएबल्स हैं जी मेरे पास। एंड फिक्स्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दीज will be remain the part of all the kind of regression, जितनी भी regression करूंगा these variables will be same, ये variables same हो जाएगा। so these two variables will be, इन दोनों को वैसे सेपरेटली आप रन करें, यानी अंडर प्राइसिंग और रिस्क को रन करें और सब्सक्रिप्शन को करें, आपने वो वेरिएबल लेने हैं और वो वेरिएबल फिक्स करने हैं जो दोनों सिग्निफिकेंट हों। ये एक वेरिएबल भी हो सकता है, अगर आपके पास कुछ वेरिएबल आप देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है 4-5, तो उसमें से जो वेरिएबल सिग्निफिकेंट आ रहा है दैट इज अ फिक्स्ड वेरिएबल। इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, बट सर जनरली फिक्स्ड वेरिएबल स्पीकिंग से वी, क्या मींस सम फिक्स्ड वेरिएबल फिक्स से का क्या? मतलब है, फिक्स्ड वेरिएबल का मतलब है जो भी रिग्रेशन मैंने फॉर एग्जांपल 1000 रिग्रेशन करनी है तो उस 1000 रिग्रेशन में फिक्स्ड जो भी वेरिएबल हैं, जो वेरिएबल मैंने फिक्स किए हैं, दे विल रिमेन फिक्स्ड, दे विल बी पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी रिग्रेशन। मेरा मतलब ये कहने का है वो हर एक रिग्रेशन का पार्ट बनेंगे, इसलिए हम इसको वेरिएबल फिक्स्ड वेरिएबल कह रहे हैं, ठीक है। ये मींस सर वेरिएबल जो है फिक्स, जो भी हम टेस्ट रन करेंगे उन सब में वो फिक्स्ड वेरिएबल्स लाजमी होंगे। जी बिल्कुल, वो जितनी भी रिग्रेशन करनी है, दीज 2 और 3 जो भी वेरिएबल आपने आइडेंटिफाई किए, दे विल रिमेन फिक्स्ड, दे विल रिमेन द पार्ट ऑफ ऑल डिफरेंट रिग्रेशंस। एंड नाउ मैंने ये भी कह दिया कि जब आप इसको रन करते हैं तो सेपरेटली रन कर देखें, जो फिक्स वेरिएबल होते हैं दे शुड बी सिग्निफिकेंट, they should be significant in any case, so that's why they will be fixed because they are significantly impacting, और ये दोनों अगर significant होंगे then it actually they will boost the different other parts of the regression, तो शायद regression को support करेंगे to remain fixed, remain significant variables, ठीक है जी। अब एक सर और ये मैं बात कोरिलेटेड करने भी लगा होंगे, जी। फिक्स्ड वेरिएबल कोरिलेटेड भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल कोरिलेटेड नहीं होने चाहिए, वो कोरिलेशन इसलिए हो जाती है क्योंकि आप अगर एक वेरिएबल की कंस्ट्रक्शन दूसरी वेरिएबल की कंस्ट्रक्शन से मिल रही होगी तो देयर शुड बी कोरिलेशन। मैं अगर कहूं कि एक वेरिएबल कंस्ट्रक्ट करना है रिटर्न ऑन एसेट, और दूसरा वेरिएबल आप उसी रिग्रेशन में इंडिपेंडेंट डाल दें रिटर्न ऑन इक्विटी, तो दे शुड बी कोरिलेटेड, बिकॉज इसलिए कि दोनों में टोटल एसेट यूज हो रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि रिस्क की कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द रिटर्न है, एक्चुअल रिटर्न है, और ये सब्सक्रिप्शन बता रही है कि नंबर ऑफ शेयर्स डिमांडेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। तो आई डोंट थिंक सो दैट देयर इज अ कोरिलेशन दैट एग्जिस्ट। कोरिलेशन उसके अंदर एग्जिस्ट करेगी जो कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेरिएबल जो है वो सेम होती है, यानी उस वेरिएबल के जो कुछ फैक्टर्स जो हैं दूसरे वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं क्योंकि वही वेरिएबल्स के फैक्टर दूसरे में भी यूज हो रहे होते हैं, तो यहाँ कोरिलेशन नहीं होगा, यानी कि दे विल नॉट बी कोरिलेटेड विद ईच अदर। तो यहाँ ऐसा कोई रिलेशन नहीं, या आपको ऐसा वेरिएबल नहीं कंस्ट्रक्ट करना जो आपस में कोरिलेटेड हो, तो यहाँ ऐसा कोई ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, नाउ वी हैव टू मूव ऑन टू द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, उसको लिखा गया क्यू से,
ये Q वेरिएबल है, दैट इज अ वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। तो ये वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है whose significance need to be tested। ये वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट लिख रहा हूँ, ये मेरा वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है, ये वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है whose जो है सिग्निफिकेंस नीड टू बी टेस्टेड। तो मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ कि ये वेरिएबल सिग्निफिकेंट है। ये कुछ भी हो सकता है, साइज भी हो सकता है, अंडरराइटर प्रेस्टीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एंड देन वी नीड टू ऐड सम z वेरिएबल्स। ये z वेरिएबल्स भी डाल रहा हूँ, ये z वेरिएबल्स हैं, और z का मतलब है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ये हम सिर्फ डाल रहे हैं क्योंकि रिग्रेशन को पूरा करना है, अदरवाइज our variable of interest is kya, so we are trying to interested to find out that in each and every regression this kya variable will not change its sign। यानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहे, नेगेटिव ना हो। अगर किसी जगह पे भी ये नेगेटिव आ गया तो वी कैन क्लासिफाई इट एज अ फ्रजाइल वेरिएबल। इफ इट विल नॉट चेंज इट्स साइन, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही अगर रहता है in all the regressions, then it will be a robust variable, but if it changes sign at any point of time, then this q is a fragile variable। तो ये fragile variable बन जाएगा। आगे है जी explanatory variables। आगे है explanatory variables। ये explanatory variables इसलिए डाले जा रहे हैं तो क्योंकि regression को पूरा करना होता है, अदरवाइज इसको मैं अगर करूंगा तो ये साइन तभी चेंज या सही होगा या खराब होगा जब ये वेरिएबल्स इसको इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे। ये सारे वेरिएबल्स इसको इन्फ्लुएंस करेंगे। एंड वी नो दैट दीस वेरिएबल्स आर सिग्निफिकेंट वेरिएबल, दे शुड इंटैक्ट देयर साइन, दे विल नॉट चेंज। बट द क्वेश्चन इज दैट इफ वी हैव टू इंक्लूड z वेरिएबल, ये 3 वेरिएबल हम कहते हैं जनरली इसको डाले जाते हैं, लेकिन इसकी अगर स्टडीज पढ़ें पुरानी तो वो कहता है अगर 4 वेरिएबल डाल दें तो प्रोबेबिलिटी है कि बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। मल्टी कोलैरिटी के भी, ऑटो कोरिलेशन के भी बहुत सारे वेरिएबल्स जो है इनकी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो दैट्स व्हाई इट इज अप्रोप्रिएट नॉट टू इंक्लूड मोर देन 3। तो 3 वेरिएबल या मैक्सिमम 4 वेरिएबल डाले जा सकते हैं, और ये 4 वेरिएबल आपने डाल दिए, और 4 वेरिएबल के बाद जो है हम, या 3 वेरिएबल के बाद हम देखते हैं किसको मुख्तलिफ किस्म की रिग्रेशन रन करते हैं। एंड इम्पोर्टेंटली वी नीड टू एम्फसाइज दैट दिस q वेरिएबल विल नॉट चेंज इट्स साइन। अब मैं बताता हूँ कि कैसे करना है। फॉर एग्जांपल वी हैव 15 वेरिएबल्स, इन टोटल वी हैव 15 वेरिएबल्स। मेरे पास 15 वेरिएबल्स हैं, और अब मुझे बताना है कि किस तरह ये बनेगा, इसको मैं देखना चाहता हूँ। वी हैव 15 वेरिएबल्स एंड वी नो दैट वेरिएबल्स हैं, we know that these 2 variables will be fixed, 1 and 2 variable will be fixed, 2 variables will be fixed, and we also know that we have to add the variable of interest. So we are trying to add the variable of interest that we have. So I'm trying to add here the variable of interest 3. So in total, out of 3, if you want to find out, so we will be getting 12 variables left. तो ये 12 वेरिएबल्स बच गए हैं इसमें मेरे पास। 15 में से 2 वेरिएबल्स मैंने फिक्स कर दिए, और एक वेरिएबल को मैंने जो है वो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट बना दिया, एंड देन रिमेनिंग 12 वेरिएबल्स वी हैव। नाउ क्वेश्चन इज दैट इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका फार्मूला ये होता है जी। सर ये वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट का क्या मीनिंग है? सर हम इसे कैसे डिफाइन करें? जी मैं बताता हूँ। वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है जिसकी आपने सिग्निफिकेंस को टेस्ट करना है। मेरे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, रिस्क है, सब्सक्रिप्शन है, रिटर्न ऑन एसेट है, अर्निंग्स पर शेयर है, साइज ऑफ द फर्म है, एज ऑफ द फर्म है, और रिस्कीनेस है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं मेरे पास। तो मैंने कहा ये दोनों फिक्स कर दिए। अब ये रिग्रेशन जब मैं रन करूंगा ना, तो मैं बार सिर्फ देखूंगा इस वेरिएबल को। वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है whose significance is required to be tested, यानी ये वेरिएबल जो है अपना साइन चेंज ना करे, एंड इफ इट चेंजेस इट्स साइन तो ये वेरिएबल सही नहीं है, और अगर चेंज नहीं करेगा साइन तो इट्स अ रोबस्ट वेरिएबल। सो इट मींस दैट जो रिग्रेशन बाद में बनाऊंगा दिस विल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वो इसमें ऐड होता जाएगा, वो रिग्रेशन को फाइंड करेगा। ठीक है, तो ये हम इसको कंबाइन करना चाह रहे हैं, वही वेरिएबल जो अपने साइन चेंज ना करे। बट इट मे बी अ पॉसिबिलिटी दैट इफ दिस वेरिएबल इज नॉट चेंजिंग अ साइन this can be significant, this is not necessary। अगर अपना साइन चेंज नहीं करता तो जरूरी नहीं है कि वो सिग्निफिकेंट भी हो, लेकिन इट विल बी क्लोज टू द सिग्निफिकेंस, क्योंकि जब वेरिएबल चेंज साइन नहीं करता तो उसकी आपस में जो रिलेशन है बाकी वेरिएबल के साथ बहुत स्ट्रांग होता है। सो दैट्स व्हाई it is generally significant, and if it is not significant then still it will be a part of the regression, showing that these are important variable of underpricing।
So I'm just trying to make a point that how नहीं होगा, वो सिग्निफिकेंस उसकी आएगी भी नहीं, अगर साइन चेंज करेगा तो सिग्निफिकेंस नहीं आएगी। अच्छा जी, आपने मैथमेटिक्स में ये पढ़ा होगा एक ये फार्मूला पढ़ा होगा, सी एन नीचे डिवाइड करो एन माइनस आर, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, इसको क्या कहते हैं यार? बहरहाल इसको सॉल्व करते हैं। कॉम्बिनेशन का फार्मूला बना रहा हूँ, कॉम्बिनेशन का मतलब इसको ग्रुप बनाने, ये जो ग्रुप बना रहा हूँ, ये कैसे बनेंगे, ये ग्रुप कैसे बनेंगे, इस ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ मैंने लिखा n मेरे पास है 12, ये यू बनेगा जी, फार्मूला सॉल्व कर रहा हूँ, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल, ये बनेगा फार्मूला इसका जी। And we know that in total we have 12 variables, और 12 कर दिया मैंने, 12 factorial divided by r is the number of variables that you need to include as explanatory variables. तो 12 में से 3 माइनस कर रहा हूँ, 12 माइनस 3, और इसको फैक्टोरियल बना रहा हूँ। So if we solve this, we can write it as, इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये बनेगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल, ठीक हो गया। और इसको अगर सॉल्व करें तो मेरा ख्याल आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं। चलें 12 फैक्टोरियल, इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी, 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल। 9 तो 9 से वो कैंसिल हो जाएगा जी, 9 खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको लिख रहा हूँ, ये 9 फैक्टोरियल 11 मल्टीप्लाई बाय 10 जी। ये मुझे बता दें क्या आता है, ये आपस में कट जाएगा, और ये 120 कह रही है, लेकिन 120 से ज्यादा आना चाहिए। नहीं सर, 120 नहीं आएगा, 120 2 11 1320 1320 1320 जी। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस वेरिएबल को कांस्टेंट रखूं, उनमें से जो मैंने देखे, इसलिए वेरिएबल को निकाल दिया था पहले, अगर इस वेरिएबल को कांस्टेंट रखूं तो ये एक, इसको टेस्ट करने के लिए, इसके वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट को टेस्ट करने के लिए वी हैव टू रन 1320 रिग्रेशंस। इसको 1320 रिग्रेशन को रन करूंगा, देन वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई वेदर दिस क्यू वेरिएबल जो है इज सिग्निफिकेंट और रोबस्ट और फ्रेजाइल वेरिएबल। ठीक है, मैंने इसकी थोड़ी सी इलस्ट्रेशन दी है, मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ। अच्छा जी, नोट जो आपको मैंने पहले स्लाइड भेजी थी उसमें इलस्ट्रेशन छोटी सी दी हुई है। अच्छा जी, ये दिया हुआ है, ये वेरिएबल 2 फिक्स कर दिए मैंने, ये वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है, ये 1 2 3 लिखा, ये कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, 1 2 तो सेम रहेगा, 3 4 5 6 7 8 9 12 हमने बना लिए वेरिएबल, ये आगे 1 2 3 एंड देन लाइक नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट वी हैव टू इंक्लूड। Likewise we can find out that 2 variables are fixed and 1 is variable of interest, and then we can find out 1 3 4, इसी तरह के ये कॉम्बिनेशन बनते बनते 1320 की कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ये यहाँ पूरा नहीं हुआ, अब इसको पूरा करना है, या मुझे नहीं पता इसमें पूरा हो गया और शायद मैंने देखा नहीं। बहरहाल ये कॉम्बिनेशन इस तरह बनेंगे जो हमने बता दिया, इसको 12 मल्टीप्लाई बाय 11 और 10 करें तो ये 1320 इटरेशन बनती है। ठीक है, तो ये मेरे पास वेरिएबल बन रहे हैं, वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। बात समझ आ रही है कि नहीं जी? ये 2 वेरिएबल फिक्स्ड हैं, दे विल रिमेन फिक्स्ड, दे विल बी वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट जिसकी मैंने रोबस्टनेस देखनी है, और ये 3 जो जी वेरिएबल्स हैं मेरे पास, और ये वेरिएबल सेम होंगे तो फिर तो रिलेशन नहीं होगी। टेस्ट करना चाह रहा हूँ 4 5 6 7 that how they can influence, if we combine together, how they can influence towards this variable of interest, and then we can find out that whether they are significant or not. I'm just trying to show you a result कि रिजल्ट्स क्या कहते हैं, इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, इसको तरीका ये होता है कि हम इसको यूं शो करते हैं कि ये देयर आर 2 वेरिएबल्स, this is a dependent variable that actually influence risk and subscription, लेकिन फर्स्ट मंथ के बाद we can find out these 2 variables are significant, but जितनी दूर जाएगा ना जी वेरिएबल, उसी वेरिएबल को अगर आप ज्यादा टाइम पीरियड में ले जाएंगे, their significance should be faded, और significance fade होना शुरू हो जाती है। So this over subscription is not an important factors over 3 months,
but fortunately or unfortunately we are adding it on the first day, these two variables, so we cannot change these two fixed variables over the number of regressions, so they should be fixed in our model. ठीक है जी, इसमें आर स्केयर भी बहुत छोटा हो गया। और आर स्केयर की मैंने बात की थी पहले कभी, तो आर स्केयर हमेशा जो फाइनेंस का है वो आर स्केयर हमेशा कम आना चाहिए, इट शुड बी 25%, 20%, 10%, 5%, so it actually ideal condition यही होती है। But if the R scale should be large, so it should have different kind of problems like autocorrelation, उसमें बहुत ज़्यादा hetero है, शायद multicollinearity भी है, जो actually forces that R scale should be inflated. Now we are trying to find out estimation result of benchmark without Z variables. So I'm trying to develop two model here, two different tables here, और ये दो टेबल इसलिए बनाए गए हैं जिसमें ये वो वेरिएबल लिए गए हैं जो सारे सिग्निफिकेंट हैं। ये फर्स्ट डे है, ये फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट डे है, फर्स्ट मंथ है, ये सेकंड मंथ है, ये थर्ड मंथ है, इस तरह इसका दिया हुआ है, ठीक है। But we include all these variable that are significant or those variable which are not changing its sign. तो x variable लिख रहा हूँ, क्या को लिखा था z variable of interest. So variable of interest significant, so we include it. So इस खाली को रन कर लिया मैंने रिग्रेशन को, इसी तरह इसको रन कर लिया और ये वेरिएबल भी इसके अंदर जाके शायद देर से सिग्निफिकेंट हो जाता है। So all the variables which are not changing its sign over number of regressions, so we are saying that these are the estimation result without z variable. Z means that all the variables, z means that all the similarity variables that we have included. So if we go then we can find out, here we can find out that their z scale, their r scale should be high. R scale तभी ज़्यादा होता है जब significance होती है, so we can find out here that all the variables are significant, so that's why R scale should be high, but it is not too high that as we expecting it 90%, 95%. So here we are saying that we include all the variables. So इसलिए इसको दिया जा रहा है कंपैरिजन करने के लिए, दैट अगर इस वेरिएबल को रखता तो सिग्निफिकेंस खत्म हो जाती, ठीक है जी। अब मैं इसको ये आगे z को इंक्लूड किया गया, z को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ सारे, z ऑल द वेरिएबल्स आर इनसिग्निफिकेंट वेरिएबल्स, और जो साइन अभी इस एग्रेशन में आते हुए आए मेरे पास पॉजिटिव या नेगेटिव वी आर इंक्लूडिंग, एंड यू कैन फाइंड आउट दैट द t वैल्यू वेरी स्मॉल, t वैल्यूज बहुत छोटी होती है। जब भी कोई वेरिएबल अपना सिग्निफिकेंस चेंज करता है, साइन चेंज करता है, इसका मतलब है दे आर नॉट स्ट्रांग एनफ, एंड दैट्स व्हाई देयर t वैल्यू हमेशा छोटी ही होगी और ये छोटी ही है। एंड देन वी कैन फाइंड आउट ज्यादा वेरिएबल, हालांकि ज्यादा वेरिएबल आप ऐड करें तो आर स्केल बढ़ना चाहिए, but all z variables are insignificant, so that's why they push and decline R scale from 52 to 49%. So ये कम हो गया। इसी तरह हम देख लें ये variables, but if interestingly we can find out in model 2 offer price and return on asset both are significant, but once we include all the variables, z variables की बात कर रहा हूँ, include all the variables, इन सारे variable डालने का नुकसान ये हो रहा है कि that ROA return on asset and offer price actually fading their significance, तो significance जो है वो खत्म हो रही है इसके अंदर। So these are two tables that we have, और जब भी आप extreme bound analysis करेंगे then you should provide two different tables, so you can make a comparison that why it is better than including all the variables. So this study is also emphasizing that there is a comparison of EBA technique with other econometric model. One of the reviewer has asked a question that we need to add some section identifying that how we can say that the CBA technique is better than other techniques. So we added this, that is Akaik information criterion, Schwarz Bayesian information criterion, Akaik Quain information criterion. So all these different methods that we have, these are very simple, and these are general to specific method, and then we are trying to make a comparison with EBA, but we can say that EBA is not much better. It is actually at par with other techniques. So ये दूसरी technique के बराबर ही है. We cannot conclude that it is much better as compared to the other techniques. So these are the technique that we have. I have another paper, the same paper, but in which we are trying to compare the short and intermediate term performance. और एक और टेक्निक आपको बताने लगा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, that is a Lasso regression. Lasso regression, Lasso 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 regression, और ये Lasso regression भी इन्हीं टेक्निक्स का एक अपग्रेडेड वर्जन है। और Lasso में अगर आप इसको रन करेंगे तो Lasso में वो वेरिएबल 15 में से वो 10 वेरिएबल आपको बताएगा that these variables are relevant variables, सिर्फ एक क्लिक से। बट इफ यू वांट टू, उसमें ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप अपने मॉडिफाई करना चाहते हैं कि वो कौन से वेरिएबल हैं जो इसमें से भी अब शॉर्ट लिस्ट करूं तो वो 6 वेरिएबल होंगे,
and out of 6 variable might be 4 और 3 वेरिएबल्स सिग्निफिकेंट बट 6 वेरिएबल का कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो उसमें भी आपको दिखा सकते हैं कि लेसो में अगर यूज करता हूं तो ये रिजल्ट आते हैं, और लेसो रिफाइन करते हुए ये रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करता है, एक्सप्लेन करता है, तो देन यू कैन मेक अ कंपैरिजन। मैं जस्ट इसलिए ऐड कर रहा हूं कि देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स। Fortunately or unfortunately, this EBA technique and LESO are applicable to only event study methodology. They cannot be applied in panel data. Panel data अगर किसी ने अप्लाई किया हुआ तो वो irrelevant है, वो incorrect है, because these can only be applied in event study. यही इनका ड्रॉबैक है कि they can never be applied in panel data में, ये अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई। Now, if you have any question, you can ask. फिर मैं आगे चलता हूँ। जी क्वेश्चन है तो बता दें मुझे। सर मैं पूछ रही थी कि ये टेक्निक्स जो है हमारा जी 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 बताएं। जी सर, ये जो टेक्निक्स है ये फिर हम कैसे सीखेंगे, क्योंकि आगे हमें तो अ, देखिए टेक्निक मैंने आपको एक्सेल में दी हुई है फाइल, आप उसको रन करें, जी वेरिएबल भी दिए में, उसमें सारे जी वेरिएबल्स पुट करें। तो नेक्स्ट क्लास में जो अब आप आएंगी तो उसको देख लें, नहीं तो मैं आपको समझा दूंगा, सिखा दूंगा। देखिए यहाँ पढ़ाना है, उस पे मुश्किल काम है सारे जी जो सर। है, पैरेलल मैं भी समझाता हूँ बहुत सारी चीजें, लेकिन आप उसको कर लें। तो करना चाहते हैं तो मैं करवा दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैंने वेरिएबल एक्सेल में भी दिए हैं, आप वेरिएबल पुट कर लें, फिक्स की जगह दोनों वेरिएबल को लिखें, इसी तरह जो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है उसको लिखें, और फिर आगे 3-3 वेरिएबल ऐड करते जाएं। तो ये सारा सीरीज बनाएंगे, और सारी सीरीज जितने टेप बन जाएगा आपके पास, इन सबको पेस्ट कर दें स्टाटा के अंदर एक दफा ही अपने वेरिएबल डाल के, तो सारी रेग्रेशन एक सर दफा वो ही आपको। स्टार्ट जो है सर ने जो मुझे लिंक किया है वो ओपन नहीं हो रहा, रन नहीं कर रहा। अब मुझे आप कोई ऑथेंटिक किस तरह कोई लिंक दे दें उसमें एरर आ रहा ताकि है। इसको इंस्टॉल करूं। एरर आ रहा है सर वो। मिस आपको तो यूनिवर्सिटी वाले ही देंगे, अगर आप नेस्ट आती हैं तो नेस्ट में डलवा दूंगा आपको। असल में मेरे पास दूसरा मैक है, एप्पल में सॉफ्टवेयर डिफरेंट होते हैं, ये सॉफ्टवेयर जी जो है वो सर। आपके सिस्टम में नहीं चलेंगे, तो इसलिए मैं जी शेयर सर। करूंगा, अभी तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी खुलती है तो आपको सारे मिल जाएंगे सॉफ्टवेयर, सारा सबको डलवा के दिए हमने। ठीक है सर। ठीक है, आपको मिल जाएंगे, ना मिले तो फिर ठीक। उसका कोई हल कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी ठीक आगे है, चलते थैंक हैं यू। लॉन्ग रन परफॉर्मेंस के ऊपर, और लॉन्ग रन परफॉर्मेंस देखते हैं कि कैसे बनती है और इसका क्या मतलब होता है। क्या तो हुआ था, एक मिनट। अच्छा जी, अगला पेपर मैंने सॉरी बहुत लेट भेजा आप लोगों को, शायद मुझे जल्दी भेजना चाहिए था लेकिन मैं नहीं देख सका। अगला जो पेपर है दैट वी नीड टू डिस्कस इज लॉन्ग रन परफॉर्मेंस ऑफ आईपीओस, मैंने भी आपको शेयर किया है, और दोबारा इसको मैं खोल भी लेता हूँ ताकि देख लें हम इसको कैसे। अच्छा, दिस इज अनदर स्टडी showing the long run performance of IPOs after market performance, इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केट के बाद क्या IPO कैसे बिहेव करता है, और दो किस्म का बिहेवियर इसमें देखा गया है, शॉर्ट रन भी और लॉन्ग रन भी, लेकिन मैं इसमें ज्यादा मेजॉरिटी जो डिस्कशन है दैट इज बेस्ड ऑन द लॉन्ग रन परफॉर्मेंस ऑफ IPOs। इस पूरे जब भी लॉन्ग रन परफॉर्मेंस की बात की जाएगी तो उसमें एक लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट आप सुनेंगे और बार बार यही आएगा, दैट इज अंडर परफॉर्मेंस। पहले तो आपने अंडर प्राइसिंग सुना, और अंडर प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि अंडर प्राइसिंग का मतलब ये था कि the price of a share in which you participate is lesser, so you participate in those IPOs having a less price as compared to the market price। तो अंडर प्राइस का मतलब है कम प्राइस पे you purchase and you actually obtain a positive returns। लेकिन अंडर परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि IPOs, how IPOs behave in long run। So underperformance का मतलब है the behavior of IPO is less as compared to the market return, यानी नेगेटिव रिटर्न, नेगेटिव की बात हो रही है, अंडर परफॉर्मेंस नेगेटिव को शो करता है। अंडर प्राइसिंग का जब मैंने सॉल्व किया था मैंने कहा था पॉजिटिव रिटर्न होते हैं, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस के अंदर पॉजिटिव रिटर्न होते हैं। अंडर परफॉर्मेंस का मतलब होता है रिटर्न ऑफ एन IPO आफ्टर 1 ईयर माइनस रिटर्न ऑफ द मार्केट, स्टॉक मार्केट in 1 year। So if we equate both these values, we will be getting negative returns। Negative का मतलब है underperformance। इसका मतलब ये है कि IPO is perform less as compared to the market
रिटर्न, तो मार्केट रिटर्न से ज्यादा कम बिहेव करते हैं, तो इसको हम अंडर परफॉर्मेंस कहते हैं। बार बार यही लफ्ज आएगा, अंडर परफॉर्मेंस का लफ्ज आएगा जी। ठीक है जी, क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लीजिएगा, मैं फिर आगे चल रहा हूँ। हाँ, हम ये कहना चाह रहे हैं मार्केट रिटर्न, पूरा मार्केट की बात कर रहा हूँ। मार्केट रिटर्न एज अ कंपैरिजन टू मार्केट रिटर्न, द परफॉर्मेंस ऑफ आईपीओ इज लो, बिकॉज देखें आगे अभी आपने क्वेश्चन कर दिया तो मैं आगे जाके इसमें डिस्कस करूंगा। सबसे बड़ा मसला तो ये है मेरे लिए कि जब मैं शॉर्ट रन में, तो ये होता है ना कि आज ही रिटर्न बनेगा और आज ही मार्केट रिटर्न से मैं उसे कंपेयर कर लेता हूँ वेदर आईपीओ जो अंडर प्राइस होता है या ओवर प्राइस होता है। लेकिन जब मैं एक ही आईपीओ को एक साल के बाद कंपैरिजन करता हूँ मार्केट के साथ, बिकॉज मार्केट रिटर्न इज अ बंच ऑफ 100 कंपनीज, मार्केट रिटर्न 100 कंपनी से मिलकर बनता है, ऐसे ही है जी। और जो मार्केट रिटर्न 100 कंपनी से मिलकर बनता है उसका रिटर्न बढ़ता ही जाएगा। आप बेशक पाकिस्तान उठा के देखें, एक साल के बाद इंडेक्स बहुत ज्यादा बढ़ता है, यानी रिटर्न, मार्केट रिटर्न इज मच हायर एज कंपेयर टू द रिटर्न ऑफ अ सिंगल आईपीओ। तो इसका मतलब है तो वो तो बेचारा अंडर परफॉर्म ही करेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो अंडर परफॉर्म करेगा, बिकॉज शायद कोई आईपीओ हो जिसका रिटर्न शायद मार्केट के साथ मैच कर रहा हो। तो इट मीन्स दैट इट कैन बी इनकरेक्ट एंड देयर आर डिफरेंट controversial thing that can be raised, that we are trying to make a comparison of one company with 100 companies। तो ये तो सबसे बड़ी बात हमने कर दी कि शायद ये सही नहीं है लॉन्ग रन के अंदर, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू मेक अ कंपैरिजन ऑफ वन कंपनी विद 100 कंपनीज के साथ कंपैरिजन करता हूँ, और फिर एज अ रिजल्ट तो आंसर आपका नेगेटिव ही आएगा, बिकॉज द परफॉर्मेंस ऑफ 100 कंपनीज जो मैं इनको ऐड करूं तो शायद इट इज मच हायर एज कम्पेयर टू द परफॉर्मेंस ऑफ सिंगल कंपनी। तो इसलिए अंडर परफॉर्मेंस परसिस्ट करती है और दुनिया में अंडर परफॉर्मेंस ही परसिस्ट करती है। और अंडर परफॉर्मेंस जो है वो कम ज्यादा तो हो सकती है, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस जो है वो डिफरेंट होती है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ वी कैन कोप विद दिस थिंग्स। ये जो मैंने मसला बता दिया सबसे बड़ा, इसको कैसे टैकल करना है। जब मैं इसमें लफ्ज ऐड कर रहा हूँ जी, वंस वी आर ट्राइंग टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ एन आईपीओ with the performance of 100 companies, it creates different kind of biases। biases, BIASES। ये biases आपने शायद उसमें बहुत ज्यादा सुनी होंगी, क्या कहते हैं, बिहेवियरल फाइनेंस के अंदर। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ बाइसेस क्रिएट करता है। देयर आर 3 काइंड ऑफ बाइसेस, जहां लिखा हुआ है मैं इसमें लेके आता हूँ, फिर मैं अपनी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि मैंने क्या करना है। देयर आर 3 बाइसेस इसमें तो अच्छा जी, इसमें नजर तो नहीं आ रहा मुझे, चले मैं बताता हूँ आपको। देयर आर 3 बाइसेस। नंबर वन is survivalship bias। survivalship bias, there are 3 biases that we have। number one is the survivalship bias। मैं लिखूं जी, इसको लिखूं थोड़ा सा, चलें लिखते हैं। यार कुछ समझ आ रही है कि मैं आपको, जी सर। पता नहीं ऑनलाइन पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है जी मिस। चलें बाल कुछ, चलें नेक्स्ट टाइम खोली जाएगी यूनिवर्सिटी, अभी गुजारा करते हैं। सर आ रही समझ। अच्छा जी, मैंने लफ्ज यूज किया सर्वाइवलशिप बाइस। सर्वाइवल मैं लिखता हूँ, सॉरी जी मुझे लिखना भी नहीं आ रहा इसमें, मेरी राइटिंग इतनी बुरी नहीं है, लेकिन यहाँ लिख, माउस से लिखना है, उससे लिखना है। ये है सर्वाइवलशिप। अच्छा जी सर, ये है सर्वाइवलशिप बाइस। इसका मतलब है कि 100 कंपनीज, इट इज नॉट द केस दैट 100 कंपनीज विल सर्वाइव ऑन ईच डे। ऐसी है ना जी, 100 कंपनीज सेम नहीं होती रोज, सेम नहीं होती जी 100 कंपनीज, ऐसी ही है ना, जी जी सर। क्योंकि कंपनीज तो हैं 560, और जो ट्रेडिंग ज्यादा करेगा वो इस 100 कंपनीज में आ जाएगा। तो इट मीन्स दैट all the companies cannot survive in the entire 100 days, yeah, in 1 year it is not the case all the companies can survive।
can exist in a sample, so that's why it create a bias, survivorship bias create करेगा। या तो मैं कहूँ सारी कंपनीज एक जैसी हों तो बात समझ आ जाती है, लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है 105 नंबर पे 110 नंबर पे जो कंपनी है शायद वो बहुत बड़ी है, once it will be large it will actually transacting more ट्रेडिंग, जब ज्यादा ट्रेडिंग करेगा तो मार्केट रिटर्न को इन्फ्लेट कर देगा। So it means that it is not the case that we are trying to compare one company with the 100 companies because it actually creating a survivorship bias। तो 100 companies शायद सेम भी नहीं होती, इसलिए नहीं होती because they cannot survive, they cannot be a part of 100 companies on each day, so that's why we can say that it would be difficult to make a comparison with one firm with the सर हम 100 companies। KSE 100 की बात कर रहे हैं। जी मैं 100 की बात, KSE 100 से पहले भी मार्केट रिटर्न जो है वो KSE 100 से निकलता है, ऐसे ही किया था। सर KSE 30 भी है ना? नहीं 100 की बात कर रहा हूँ, KSE 100 की बात करेंगे, हमारा इंडेक्स 100 है, वैसे तो बहुत सारे इंडेक्सेस हो सकते हैं लेकिन मैं सिर्फ 100 की बात कर रहा हूँ। इस तरह निकाई स्टॉक चेंज है 225 है, वो ज्यादा भी है कम भी है लेकिन उसी को लिया जाता है, जो बेंचमार्क है उसी को ले रहा हूँ। अच्छा सर ये अब डेली भी है बेसिस पे और सर जी, ये डेली डेली बेसिस पे चेंज होते रहते हैं। 100 कंपनी सेम नहीं हो सकती ना जी, 100 जी कंपनीज अगर जो 110 पे है उसकी ट्रेडिंग ज्यादा होगी वो भी यहाँ आ जाएगा। So 100 companies cannot be same, they cannot survive on each day, so नहीं 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 ऐसा ऐसा नहीं है। जो 100 कंपनीज हैं उसमें कोई भी कंपनी, देखिए हर सेक्टर की एक लिमिटेड कंपनीज है, ये आप कह सकते हैं, हर सेक्टर की लिमिटेड कंपनीज है, ठीक है। हर सेक्टर में फॉर एग्जांपल एक सेक्टर में 5 कंपनीज हैं, एक में 20 कंपनीज हैं, तो वो 5 ही कंपनीज होंगी। उस 5 के अंदर अगर कोई कंपनी जो है दूसरी कंपनी परफॉर्म करती है वो 5 के अलावा, तो वो उस कंपनी का पार्ट बन गई। 20 अगर कंपनीज एक सेक्टर में मैक्सिमम है, तो अगर 21 कंपनीज कोई अगर परफॉर्म करेगी दे विल बी अ पार्ट ऑफ 20 कंपनीज, तो वो 100 कंपनीज जो हैं इट कैन नॉट बी सेम। मेरा क्वेश्चन ये, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है कि वो चेंज बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। हम यहाँ सिर्फ सिंपल बात करें दैट एनी कंपनी involved in trading activities higher than the other companies, they will become part of 100 companies, तो 100 companies का part बन जाते हैं। So I'm just trying to make a comparison that if we compare one firm with the 100 companies, it can create a survivorship bias because all the 100 companies cannot be same in the sample period. Second is the new listing bias। न्यू लिस्टिंग बाइस, न्यू लिस्टिंग का मतलब है कि स्टॉक मार्केट पे कंपनीज लिस्ट होती जा रही हैं, and if new companies are listing and they are involved in higher trading activities, जरूरी नहीं है कि सारे ही हों लेकिन कुछ कंपनीज may be involved in higher trading activities। न्यू लिस्टिंग कंपनीज, एक कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है आईपीओ की या कोई भी कंपनी है दैट कैन इंक्लूड दिस 100 कंपनीज, 100 कंपनीज में आ जाती है। सो ये जो नई कंपनी है अगर इसका साइज बहुत बड़ा है देन इट एक्चुअली create more return on this part of this 100 companies। तो न्यू लिस्टिंग का मतलब इफ एनी कंपनी विल बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट एंड देन उसकी ट्रेडिंग इतनी ज्यादा हो जाती है दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ 100 कंपनीज, सो इट एक्चुअली क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग बाइस। ये बाइसेस क्रिएट कर रहा है कि नई लिस्टिंग के आने से ये 100 कंपनी जो है वो डिफरेंट हो जाएंगी। एंड इफ न्यू कंपनी इज एंटरिंग इट साइज इज लार्ज then the return of this 100 companies would be high। So it means that it cannot be comparable with the 100 companies। So question है कि एक कंपनी को 100 कंपनी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। And the last bias is the skewness bias। The last bias that we have is the skewness bias। ये है skewness bias। skewness का मतलब है कि नेगेटिव लिस्ट जो भी आप बनाएंगे, अगर आप एक कंपनी को 100 कंपनी से कंपेयर करेंगे दे विल ऑलवेज बी नेगेटिवली स्क्यूड। सो दे विल बी नेगेटिवली स्क्यूड इसलिए कि सारे रिटर्न नेगेटिव में, अंडर परफॉर्मेंस हो रही है तो ये सारे नेगेटिव में, सारी चीजें जो है नेगेटिव में है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दे आर नेगेटिवली स्क्यूड। सो वंस वी आर ट्राइंग टू मेक अ कंपैरिजन between one company with 100 companies, it will create a survivorship bias। इसलिए दोनों को कंपैरिजन नहीं करना चाहिए because it will create a survivorship bias। 100 companies cannot be constant, there may be probability that new company will be listed and then they will become a part of 100 companies, create a new listing bias। And then last is skewness bias, means that once we are trying to make comparison between two, ये अंडर परफॉर्मेंस सारी अंडर परफॉर्म ही करेंगे। अब अंडर परफॉर्मेंस का मतलब है नेगेटिव रिटर्न्स ही अर्न करेंगे और नेगेटिव रिटर्न्स कम होगा ज्यादा होगा, सो इट मींस दैट ये ऑल द रिटर्न्स आर नेगेटिवली स्क्यूड।
Now, my question is that what would be the solution? अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट वुड बी अ सॉल्यूशन, क्या करना चाहिए इसको। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के लिए नया भी होगा कि हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। सो इन दिस केस वी नीड टू डेवलप आवर ओन पोर्टफोलियो। तो मुझे अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। सो वी नीड टू डेवलप आवर पोर्टफोलियो। सो वी नीड टू डेवलप अ पोर्टफोलियो। जी 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 बताएं। बिल्कुल नहीं, वहां पे नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हम देखें शॉर्ट रन में जो भी रिटर्न है वो एक टाइम पीरियड से कंपैरिजन हो रहा है। और अगर आप इंडेक्स देखें 1 साल 2 साल 3 साल का, तो वो इंडेक्स जो है बहुत तेजी से बढ़ता है। वो इसलिए बढ़ता है कि कंपनीज की ग्रोथ हो रही होती है। कंपनीज अगर हम उसी पीरियड में रह के 2 दिन देखें, महीना देखें, 2 महीने देखें, तो शायद इट कैन नॉट बी अ इशू, इट कैन बी मैनेजेबल। तो शायद इतना एक महीने अगर आप आज और कल के रिटर्न को कंपैरिजन करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, मुझे बताएं, नहीं होगा। लेकिन आज के रिटर्न को अगर मैं अगले साल के रिटर्न से देखूंगा, 1 साल आगे जाके 9 अक्टूबर देखूंगा 2021 में, तो रिटर्न्स वुड बी डिफरेंट। तो रिटर्न शायद बहुत पॉजिटिव होगा या बहुत नेगेटिव होगा, इट कैन बी एनी केस। तो वो वहां से डिफरेंट हो जाए। एक दिन में इंडेक्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन है, एक वीक है, एक महीना, यू कैन यूज इट एज अ पार्ट ऑफ, देन यू कैन मेक अ कंपैरिजन विद शॉर्ट रन। लेकिन लॉन्ग रन हमेशा जो है, लॉन्ग रन जो है वो डिस्टॉर्ट करता है फैक्टर्स को, क्योंकि वो कंपनीज जो है वो डिफरेंट होती जाएंगी और मार्केट एक्टिविटीज डिफरेंट होती जाएंगी। सो दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी अ केस दैट वी कैन मेक अ कंपैरिजन विद मार्केट रिटर्न। तो नहीं होता है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। ये ऐसे ही होता है। कभी भी लॉन्ग रन में चले जाएंगे तो आपको वो क्रिएट करेगा बाइसेस। बहुत सारी आप स्टडी पढ़ेंगे, बहुत सारी स्टडीज हैं जिसमें मार्केट रिटर्न को यूज किया गया है। लेकिन अभी भी पेपर अगर आप मार्केट रिटर्न को यूज करेंगे, पेपर तभी छप जाएगा, वो मसला नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि वो रिजल्ट कैसे हैं, आपने लिखा कैसे है, वो तभी हो जाएगा। लेकिन दिस इज नॉट द केस। इन ऑर्डर टू डेवलप अ रैशनल रिजल्ट, वी नीड टू डेवलप आवर ओन पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि नाउ वी आर ट्राइंग टू मेक अ कंपैरिजन विद वन आईपीओ फर्म विद वन नॉन आईपीओ फर्म। एक आईपीओ को एक नॉन आईपीओ फर्म से कंपैरिजन करना है, ये क्वेश्चन। नॉन आईपीओ फर्म को एक आईपीओ फर्म को एक नॉन आईपीओ फर्म से कंपैरिजन करना। सो द क्वेश्चन इज दैट ऑन व्हाट बेसिस वी आर ट्राइंग टू सेलेक्ट वन कंपनी विद द अदर नॉन आईपीओ फर्म्स। ये सारा सैंपल है मेरे पास, ये 80 आईपीओ हैं। हर आईपीओ के अगेंस्ट एक नॉन आईपीओ फर्म्स मैंने सेलेक्ट करनी है, एंड सो ऑन। So it means that now we are trying to develop our portfolio so we can make a comparison between IPO and non-IPO firms. इनको सेलेक्ट करने के लिए जो पहला पैरामीटर है, वो पैरामीटर ये है कि दोनों कंपनीज का मोर और लेस द साइज ऑफ द फर्म, दोनों फर्म्स का साइज जो है वो सेम होना चाहिए। साइज को लिया गया मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन दोनों की शेयर की जो ट्रेडिंग है उसको मल्टीप्लाई करें प्राइस के साथ, तो दोनों की सेम आनी चाहिए। होता क्या है, कहते हैं जो लिखा हुआ है पेपर्स में लिखा हुआ है कि आईपीओ, जो भी आपका आईपीओ है, उसका जो साइज है उस नॉन आईपीओ से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। थोड़ा सा यानी कि ज्यादा ही होना चाहिए। थोड़ा सा मतलब ये है कि ज्यादा होना चाहिए। 1 रुपी है, 2 रुपी है, 1000 है या 1 लाख रुपी है, उससे ज्यादा होने, जो भी पॉइंट जो भी आ रहा है, कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। आपने नॉन आईपीओ फर्म वही लेनी है जिसमें आईपीओ में आईपीओ का साइज बड़ा होता है, नॉन आईपीओ के करीब करीब होती है। यानी नॉन आईपीओ, आईपीओ इसलिए लिया जा रहा है कि आईपीओ से न्यू फर्म, और उसको इसलिए नीचे नहीं रखा जा रहा ताकि वी कैन मेक अ कंपैरिजन। ताकि नॉन आईपीओ तो परफॉर्म करेगा क्योंकि वो बहुत पुरानी हिस्ट्री है उसकी, लेकिन आईपीओ फर्म एक नई कंपनी है। सो दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू टेक दैट आईपीओ का जो साइज है वो नॉन आईपीओ साइज के साथ बराबर हो, देन वी कैन मेक अ कंपैरिजन। दूसरी बात, जो बुक टू मार्केट रेशियो है, बुक टू मार्केट रेशियो है, वो दोनों फर्म्स की सेम होनी चाहिए। अगर मैं ये पाकिस्तान में अप्लाई करूं तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब ये है बुक वैल्यू फॉर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू फॉर शेयर, बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। ये बुक वैल्यू डिवाइड करो मार्केट वैल्यू से। अगर आंसर आता है 1 आईपीओ फर्म का, तो आपको नॉन आईपीओ फर्म वही लेनी है जिसके बुक टू मार्केट वैल्यू को सॉल्व करूं तो 1 ही आए मेरे पास। और ये शायद उस कंट्रीज में तो हो सकता है जहां हम की मार्केट बहुत बड़ी हो, हमारे पास सिर्फ 500 कंपनीज हैं,
और जरूरी नहीं है कि वो कंपनी जो है वो सारी सर्वाइव भी कर रही हो. सो दैट्स व्हाई बुक टू मार्केट, दिस इज मोस्ट क्रूशियल फैक्टर. ये इसलिए लिया जा रहा है कि बुक टू मार्केट रेशो, जितनी रेशो छोटी होगी, ये मार्केट की उस आईपीओ की या उस कंपनी की एफिशिएंसी को शो करती है. बुक वैल्यू अगर ज्यादा है ना, बुक वैल्यू 10 है, मार्केट वैल्यू 5 है, 2 आ रहा है आंसर, 3 आ रहा है, इसका मतलब है द मार्केट वैल्यू इज मच लोअर देन द बुक वैल्यू. लेकिन आंसर छोटा आता जा रहा है, ऊपर आ 10 नीचे 100 है, तो आंसर आ रहा है 0.1. तो इसका मतलब है जितनी बुक टू मार्केट रेशियो छोटी होती है, इट शोज द एफिशिएंसी ऑफ द फर्म बिकॉज द मार्केट प्राइस इज मच हायर एज कंपेयर टू द बुक वैल्यू. सो माय क्वेश्चन इज दैट if IPO is being selected as compared to non-IPO, both the firms should have the same book to market ratio. In this study that I am trying to refer here, that I am unable to apply this book to market ratio. अगर मैं इसको apply कर दूं तो शायद non-IPO को select करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. So I only use this size, one of the proxy, in order to develop the portfolio where the size of both IPO and non-IPO firm should be equal. Now third जो इसमें फैक्टर है कि दोनों कंपनीज का सेक्टर यानी ऑपरेशन ऑफ बिजनेस जो है एक ही सेक्टर में होना चाहिए. The sector of business of both the IPO and non-IPO firm should be same. The reason is that if one company is getting an opportunity in a specific sector, the other should get the opportunity whether they avail or not. But it means that banking company है, IPO एक banking company का है, so we need to select non-IPO firm should relate to a banking industry से relate करना चाहिए. IPO steel sector का है, then non-IPO firm should be located in the steel sector. तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिसकी बेसिस पे मैं अपने पोर्टफोलियो को डेवलप करता हूँ. एंड नाउ देन वी कैन मेक अ कंपैरिजन. सो वी कैन फाइंड आउट that IPO can perform better than non-IPO and non-IPO can perform better than IPO. लेकिन on average हमें पता चलता है कि अंडर परफॉर्मेंस ही होती है. The IPOs perform less as compared to non-IPOs. On average की बात कर रहा हूँ. It can be a positive sign, but generally it is showing a negative sign. So the performance of IPOs is much lesser as compared to the performance of non-IPOs because IPO जो है मैंने कहा कि जितना टाइम पीरियड गुजरता जाएगा देयर जो शेयर की प्राइस है वो फेड होती जाएगी. अभी मैंने थ्योरीज डिस्कस नहीं की, थ्योरीज भी डिस्कस कर रहे हैं. सो द प्राइसेस ऑफ द शेयर फेडेड because if we hold it for a long period of time, the prices can adjust them accordingly, and then prices cannot revive as much as actually persist for other companies. So that's why they can obtain a negative returns. Most of the literature emphasize that 3-year period is more crucial. 3 to 5 year period is more crucial, where IPO firms can obtain a negative returns. Means that underperformance is higher than the comparison to non-IPO firms. But after a certain point, 3 to 5 years के बाद ऐसा है कि दोबारा prices of IPO बढ़ना शुरू हो जाते हैं. अगर मैं 10 years का underperformance निकालूं, 10 years की परफॉर्मेंस मेजर करूं तो IPO परफॉर्म बेटर एज कंपेयर टू नॉन IPO फर्म्स. तो ये अंडर परफॉर्मेंस नहीं होगी, द परफॉर्मेंस वुड बी ओवर परफॉर्मेंस. ये जो परफॉर्मेंस है IPOs की, इट विल बी ओवर परफॉर्मेंस इन लॉन्ग रन. तो ओवर परफॉर्मेंस हो जाती है इसकी, और ओवर परफॉर्मेंस सिर्फ इसलिए हो जाती है बिकॉज द प्राइसेस विल रिवर्ट बैक एंड प्राइसेस विल इंक्रीज. नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन arises that if both using non-IPO and the market return, in both the cases IPOs are getting negative returns. So if we are getting negative returns in using the market return, then why we are using non-IPO firms? Still we will be getting negative return in both the scenarios. होता ये है कि रिजल्ट बताते हैं कि once we are trying to make a comparison with market return, the underperformance would be much higher. 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल बहुत underperformance बहुत ज्यादा है. underperformance है 50% से ऑन एवरेज. लेकिन IPO और नॉन IPO को जब मैं कंपैरिजन करता हूं तो परफॉर्मेंस जो है इसमें दोनों की परफॉर्मेंस जो अगर मैं इनको कंपैरिजन करूं तो अंडर परफॉर्मेंस इज मच लोअर. अंडर परफॉर्मेंस कैन बी 10%. सो बिकॉज वी आर ट्राइंग टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन वन फर्म with the non-IPO firm, so that's why we are trying to get our true level of the underperformance that we can obtain from an IPO. So that's why we can say that though IPO is underperforming, but the chances of underperformance would be much lower as compared to using in market return. तो market return शायद यूज करूंगा तो बहुत बड़ा इंडेक्स है, इसकी वजह से रिटर्न्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, एंड IPOs cannot match those amount. इसको हम ये कहते हैं जो डेवलप पोर्टफोलियो को हम इसको कहते हैं मैचिंग फर्म क्राइटेरिया. मैचिंग फर्म का मतलब है वी आर ट्राइंग टू मैच IPO फर्म विद नॉन IPO फर्म. मैचिंग इसलिए बिकॉज बोथ फर्म्स शुड हैव अ सेम साइज,
both firms should have a same book to market ratio, both firms should have both should operate in the same sector. So that's why we are trying to develop our own portfolio, and then we can make a comparison. The underperformance should persist, but the underperformance in case of IPO and non-IPO is much lesser as compared to IPO versus market return. The underperformance would be much higher, but here the underperformance is much low. ठीक है जी, आगे मैं थ्योरीज डिस्कस करना चाहता हूँ. If you have any question, you can ask. जी, कोई क्वेश्चन है तो बता दें. सर डाटा सोर्सेज जो होते हैं पाकिस्तानी मार्केट्स के हवाले से, ये जो हम डाटा यूज करते हैं फाइनेंस में, इसमें ज्यादा रिलायबल कौन सा है? दोबारा बोलें. सर जो डाटा सोर्सेज हैं जिस डाटा को हम यूज करते हैं मोस्टली फाइनेंस की स्टडीज में, तो ये डाटा सर ज्यादा रिलायबल कौन सा है? क्योंकि जनरली तो जो सर्कुलेट हो रहा होता है वो स्टेट बैंक का डाटा एनालिसिस शीट्स हैं और बस वही है, जिसके अलावा तो कोई सोर्स नहीं है. लेकिन सर वो तो ऑलरेडी प्रोसेस डाटा है, और मैंने 2-3 दफा उस पर जब स्टूडेंट से काम करवाया है तो उसमें मुझे लगा कि कुछ एरर्स हैं. बस इंसानों ने बनाए हैं, और जो है वो डाटा प्रॉपरली मेंटेन नहीं होता, तो उसमें बहुत सारे एरर्स आते हैं. लेकिन बेहतर तरीका तो ये होता है कि कंपनी से, जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, उसी से आप डाटा कलेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है. क्योंकि अगर एक साल का डाटा है और अगले साल का डाटा देखेंगे एनुअल रिपोर्ट में, वो भी डिफरेंट होगा. बिकॉज अंडरस्टेट या ओवरस्टेटेड वैल्यूज होती हैं, फिर वो अपने आप को एडजस्ट करती हैं, द वैल्यूज विल बी डिफरेंट. लेकिन मेरा ख्याल है कि एनुअल रिपोर्ट से या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डाटा लिया जाए तो दैट कैन बी अप्रोप्रिएट, बिकॉज वहाँ भी डाटा फीड ही हो रहा होता है, तो शायद सही नहीं होता. सही ठीक है सर. जी, मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि ये जो मैंने बताया, अभी बहुत कुछ बताना है इसके अंदर, कि लॉन्ग रन के अंदर जो पोर्टफोलियो मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया गलती से, तो इसका कोई समझ आ रही है कि आगे चलूं मैं? यस सर, आ रही है समझ. अच्छा, अदनान, ऐसा करते हैं ब्रेक कर लें 5 मिनट की, फिर नमाज रह जाएगी मेरी भी और आप सबकी भी. ठीक है, तो 5 मिनट बाद पढ़ते हैं. ठीक है, करते हैं शुरू. थैंक यू.